गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी। हम गुरुजी के बारे में सुखी आंटी ने एक बुक में जो लिखा है, सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव, वो बुक पढ़ रहे थे। तो गुरुजी, हम पहुँचे थे पेज नंबर 48 पर। हम 48 तक हमने पढ़ लिया था। पेज नंबर 49 से अब हम पढ़ रहे हैं गुरुजी। अदर दर्शंस। जिन प्रभु धियाइया तिन सुख पाइया, वडभागी darshan paiya. Those who meditate on God find peace. By great good fortune, the darshan is obtained. Over the years that I have spent with Guruji, I noticed that he had the power to give darshan to his sangat anywhere, anytime, and in any form they desired. How does he do that? How can he ask God to come to his disciple and give darshan? Does he have that much of an authority? Obviously so. But then, who is he? These were the many questions that ran through my mind ever since I heard the Sangat speak of Guruji giving them darshan. I tried to understand his position in the divine cosmos. Who can give life? Who can control death? Who can control nature? Who can cure ailments such as cancer? Try asking yourselves these questions and you, like myself, will come up with just one answer: God, or the Supreme Power Himself. Getting a darshan is the most holy of all holy experiences. Many people in Guruji's Sangat have been blessed by the same. I remember talking to a Sikh gentleman who narrated his experience to me. He heard about Guruji from someone he knew and came to seek his blessings. On seeing Guruji, he wasn't very happy to know that Guruji was bald and not a Sikh. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Disappointed, he went back home only to be woken up by Guruji at night, lying down on a bed besides him. Badly shaken and scared, he sat up and Guruji changed his appearance to that of Guru Gobind Singh Ji, addressing the gentleman by his name. Guruji said, "You came back disappointed because you saw I was bald." Feeling rather shameful of his assumptions, he fell at Guruji's feet and thus became a disciple and visited Guruji often. Another spiritual gentleman whom I have known for many years visited Guruji along with his elder brother. Guruji called them both inside and filled up his double bed with diamond sets. He asked the elder brother to pick up any one of he fancied. He joined his hands and begged Guruji not to put him in web of Maya, materialism. Guruji then asked the younger brother, who was very spiritual,
What do you want? Asked Guruji. Guruji, please give me the divine darshan of Guru Nanak Dev Ji. He replied. Guruji smiled and walked out of the room. After about 3 months, the younger brother was in meditation in his prayer room that was locked from inside. Guruji called out to him and said, Wake up. You wanted darshan of Guru Nanak, and now the time has come. Guruji disappeared, and for about 45 minutes, this gentleman had darshan of Guru Nanak Dev Ji. Later on, this same person was blessed with darshan of all the 10 Sikh Gurus, Meera Ji and Kabir Ji. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. Many people in the Sangat have seen Guruji in the form of Shivji. A friend of mine sitting next to me in the temple suddenly started crying. She got up and ran out of it, not being able to see Guruji. It seemed very strange to me, as I had never witnessed anything like this before. On being asked what is causing her to cry like this, all she could say was that she couldn't look at Guruji's eyes. His eyes are shining so bright that it's blinding me. I can't see Guruji sitting on the asan. Instead, I see Shivji. She said I tried to calm her down, and each time I took her inside to sit among the Sangat, she would start to cry again. Guruji called me and told me to take her to his room and calm her down. Guruji, what is wrong with her? I asked. I have given her the divine darshan of Shivji, but she is unable to bear it. Not everyone can handle being given a darshan. People can even go mad. This is when I realized that it's easy for Guruji to give darshan, but it's not easy for us humans to bear the impact of such an experience. One day, while sitting with Guruji, he told me, I have blessed your grandfather with the darshan of Shivji. Next is your turn. Needless to say, I was on top of the world. My grandfather was a saintly man and never told anyone about his spiritual experiences. After probing him for 2 long days, he finally admitted to having had the darshan, and all he said was that it was an amazing experience that cannot be explained in words. Every day after visiting Guruji, I would go home hoping to have Shivji's darshan. I would clean up my room with otherwise never got cleaned, thinking Shivji would probably not like coming to a messy room like mine. I made sure to wear decent night dresses every night. But still, I never had Shivji's darshan for almost a year.
One night, when I had totally forgotten about Guruji's promise to me, I finally had Shivji's darshan. It was an amazing experience to say the least, and I understood what my grandfather meant when he said, "It can't be expressed in words." In Delhi, while sitting next to Guruji's asan, I suddenly felt a bit dizzy. I blinked a few times and looked up at Guruji, and what I saw was something that was totally out of the world. Since I was sitting on the right hand side of Guruji, I could only see his side profile. On his face, I saw a big, beautiful golden eye with thick, long eyelashes. As I looked in awe, Guruji smiled at me, and soon everything was back to normal. I was hesitant in telling anyone of what I saw, as again I wanted to be sure it wasn't my imagination. Guruji must have sensed my doubt, for as soon as I reached back home to Chandigarh, someone came over and gave me the Narad Puran to read. In the first few pages, the Narad Puran describes Shivji as the one with big, beautiful golden eyes. I got my answer. Apart from giving physical darshan to his Sangat, he also gave darshan on his body. The body of a Mahapurush is not ordinary. Many times, a Shivling and a Nag have been sighted on Guruji's forehead by many in the Sangat. While massaging his feet, my mother has seen lions in an embossed form on his feet, and many faces with eyes on his legs. On being asked why she sees lions on his body so often, Guruji would tell my mother that a lion is a symbol of Shiv. There were times when faces would develop on all 10 fingertips of my mother's hands. She again asked Guruji why she was seeing such things on her hands, and he would smile and tell her that they were all the different faces of Shivji. I too was blessed with the darshan of Shirdi Wale Sai Baba on Guruji's tongue. Once on the day of Shivratri, I was unable to visit Guruji in Delhi. So my mother and I decided to keep a fast instead. We went to the market to buy some fruit along with my grandfather. Just as we parked our car in the parking lot, a sadhu knocks on the window where my grandfather was sitting. He pointed towards a jeep and said that a Mahapurush is calling you. As we turned to look back, we saw a blue jeep with another sadhu sitting in it, sipping a glass of milk. The jeep must have just materialized because there was no vehicle in the parking lot when we came, and there is no way a diesel vehicle could come behind us without us hearing it. And what's more, we were parked at the only entrance to that market area. My grandfather got down and walked up to the jeep while I sat in the car trying to observe the Mahapurush mannerism. Although the Mahapurush looked nothing like Guruji,
Yet there was something about him that attracted me towards him. He was dark in complexion, had long hair, and was dressed in a saffron robe. I noticed that the way he drank his milk was very much like Guruji had his, with small sips. He spoke to my grandfather but kept looking towards us, and I was convinced it was Guruji. I noticed the jeep had Om Namah Shivaya written on it, and the number of the jeep came to a total of 7. Somehow I was convinced it was Guruji and decided to ask him later when I went to Delhi. About a month later, while sitting with Guruji, I asked him if he was the one who gave us darshan on Shivratri day, making sure I didn't give too many details. To my surprise, he said, "Yes, I came in a blue jeep." That day I realized that my Guru can come to me in any form, and I may not be able to recognize him the next time. Guruji, God can come to us in any form, even as a beggar. We are not always polite to beggars. Please tell us how we can save ourselves from making a mistake of shunning away God if He ever comes to us in such a form. I asked Guruji, feeling ashamed of the number of times I had been rude to beggars. Guruji ever so understandingly replied, कुछ दे नहीं सकते ता हथ जोड़ के मन विच कह दो कि माफ़ करो। जे ओ असली संत होवेगा ता समझ जाएगा। If you can't give anything to a beggar, don't be rude. Just fold your hands and say, "Please forgive me." And if it's a saint or God in a beggar's disguise, he will understand. He further added, गुप्त दान दिया करो। इस तरह दान दियो कि राइट हैंड को पता ना चले कि लेफ्ट हाथ ने क्या दिया है। हमेशा लेफ्ट हैंड से दान दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड खुला दान करता है। राइट हैंड हमेशा सोचेगा कि मैं कुछ वापस रख लवां। गुप्त दान और गुप्त पाठ से गर्भ जूनी से मुक्ति मिल जाती है। You must indulge in charity, but charity must be done in such a way that your right hand does not know what your left hand has given. Always give with your left hand, as it will give freely. Your right hand will always want to hold some things back. He said, charity and prayers done on the quiet, without anyone knowing, is the only way to liberate your soul from the cycle of the life and death. Guruji, what else can we do to attain moksha? I asked. Help the needy, feed the hungry, and read the Shiv Puran. This is the easiest way to attain liberation in this Kalyug. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you Guruji. यहाँ तक पढ़ाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज हमने संगत जी एक ही चैप्टर पढ़ा। आपका सबका बहुत बहुत शुक्राना। ये शुक्राना गुरुजी का शुक्राना कि मुझे पढ़ाया गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। संगत जी, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते होंगे ये सुनकर। इसमें हमको ये पता चला कि हमको जो दान है वो लेफ़्ट हैंड से देना चाहिए।
गुरुजी ने बहुत सारी बातें सिखाई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने एक सत्संग ब्लेस किया। सुबह मैं सोच ही रही थी कि मुझे सत्संग में जाने का मन है, पर कोई बुलावा नहीं आया। लेकिन अभी दोपहर को ही मेरी एक संगत फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि शाम को सत्संग में चलना है क्या। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछकर उनको हाँ बोल दिया। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा, हमारे लिए आप सब प्लान करके रखते हैं पहले से। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मुझे नहीं पता था कि आज ही मेरा सत्संग जाने का हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी को जय गुरुजी। आज मैं अपनी प्यारी संगत परिवार से अपने गुरु पा का वडियाई करना चाहती हूँ, और गुरु पा की अनंत ब्लेसिंग्स जो मेरे पे है मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये अरदास भी करूँगी कि सभी संगत परिवार जो ये सुने और जो ना भी सुन पाए, और उन सब के जो है सभी दुख संकट कष्ट बीमारी दूर हों, और वो ब्लैक मैजिक से मतलब उनको छुटकारा मिले और हेल्थ हीलिंग्स मिले उनको मेरे सत्संग सुनकर। और मैं यही अरदास अपने गुरुपा से करती हूँ अपने संगत परिवार के लिए। और गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं, जो कि इतना डिवाइन इतना पावरफुल मंत्र जाप गुरुपा ने हमें वो ब्लेस करा, उसके लिए भी गुरुपा का कोटि कोटि बेअंत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, गुरुपा की जितनी बढ़ाई करो उतनी कम है। और गुरुपा का हुक्म हुआ कि जो है अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, बट हम नहीं कर पाते हैं। मतलब इतना अपने आप को मैं ब्लेम करती हूँ, या फिर अंदर से बहुत बुरा लगता है जो गुरुपा ने मेरे को बताया अभी कि तू करना चाहती है बट तू नहीं कर पा रही है कुछ नेगेटिविटी की वजह से। तो संगत जी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, और मैं जब नहीं कर पाती हूँ मेरे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि गुरुपा इतना हम पर जो है कृपा कर रहे हैं। मतलब एक इतना करुणा है गुरुपा के मन में, और हमारे को इतना ब्लेस करते हैं, बिना बताए हमारे सभी संकट कष्ट दूर करते हैं। पुत्र हमें अलर्ट करते हैं कि संभल जा, ये कष्ट आने वाला है, और वो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। मतलब जैसे भी उसका सॉल्यूशन निकालना होता है वो गुरुपा निकालते हैं। तो मतलब जितनी बढ़ियाई करो ना, सच्ची में संगत जी अपने आप को इतना ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट फील करती हूँ। बहुत ही किस्मत वाली समझती हूँ कि मेरे को गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, मेरे सिर पे प्यारा हाथ रखा। इट्स नॉट लाइक सिर पे प्यारा हाथ, इट्स लाइक एक आशीर्वाद, और एक हमें इतना सुरक्षित घेरे में हमें रखा हुआ है कि उसके बियॉन्ड वो, मतलब एक घेरे के अंदर वो नहीं कोई भी नेगेटिविटी जा सकती है, या फिर उस घेरे के अंदर हमें कोई अटैक और हमारे ऊपर कुछ वो हमें इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है। कोई नेगेटिव चीज़ जो कोई हमें हार्म करना चाहे वो भी हमें उस घेरे के अंदर आकर के अटैक नहीं कर सकता है। गुरु का हमेशा ढाल बन के खड़े रहते हैं, और हमारे साक्षात मतलब ये गुरुपा महाशिव हैं, और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और गुरुपा आपका शुक्राना जितना करो उतना कम है, और चाह कर के भी मैं नहीं कर पाती, और आपके हुक्म होने के बाद भी मैं बहुत लेट कर देती हूँ। इन सब के लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। ये जो शुक्राना होता है ये गुरुपा के लिए भी नहीं होता है संगत जी, ये एक मैनिफेस्टेड
जो हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दैट इज़ मैनिफेस्टेड टू सो मैनी न्यू संगत, कि उनका भी भला होता है, विच गुरुपा वांट्स कि सबका भला हो और सबके संकट कष्ट दूर हों। और शुक्राना करना भी हमारे लिए ही बेनिफिटेड है, और हम अगर तिलक लगा रहे हैं गुरुपा को, वो भी हमारे लिए बेनिफिट है। हर चीज़ का बेनिफिट गुरुपा ने हमारे लिए रखा है। अगर हम लंगर प्रसाद खा रहे हैं, सत्संग पे जाना, बड़े मंदिर जाना, हर चीज़ में अगर हम शुक्राना सत्संग भी सुन रहे हैं, वो भी हमारे बेनिफिट के लिए है। और जितना मैं बड़ाई करूँ गुरुपा की, वो बहुत कम। सच्ची में गुरुपा पल पल हमें बचा रहे थे, मतलब जन्मों जन्मों से साथ है, बचपन से हमें हर सिचुएशन से बचा रहे हैं जो कि अनवांटेड होती है। बट अभी रिसेंटली गुरुपा जो अभी जो एक कितना मेरिकल, मतलब मेरे को ये सब एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज और डिवाइन पावर्स का नहीं पता था, या कहो कि हमें शुक्राना करना है, हमें वो नहीं पता होता था। गुरुपा ने हमें वो सब चीज़ें सिखाई, और संगत के इतने प्यारे, इतने डिवाइन सत्संग सुनवा के हमें इतने मार्गदर्शन दिया, उससे हमारे बहुत सारे मतलब रोग, संकट, कष्ट ये सब दूर होता है। हमें हर चीज़ से अलार्मिंग हमें वो पता चल जाता है, हमें कहाँ पर अलर्ट रहना है, वो सब चीज़ें हमारे जो भी हमें सॉल्यूशंस हैं, हमें वो मिल जाते हैं। मतलब कितने मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं एक सत्संग सुनने के माध्यम से। और वो हाउ दे आर स्पीकिंग, वी गेट टू नो कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे वो बोलते हैं। और जो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं इस डिवाइन वर्ल्ड की, हमें वो चीज़ें पता चलती हैं। गुरुपा के बारे में इतना सब ज्ञान हमें मिलता है, बहुत ज़्यादा डिवाइन लगता है। इतनी संगत से, मतलब जब उनके सत्संग सुनती हूँ, इतना पॉजिटिवनेस और इतना मेरे को ब्लेस्ड फील होता है कि सो फॉर्चुनेट टू बी अ संगत ऑफ माय गुरुपा, बिलोवर्ड गुरुपा, कि इतने अच्छे अच्छे जैसे वाइब्स आने लग जाती हैं पॉजिटिव, ऐसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं, एंड व्हेन वी आर वाचिंग टीवी सीरियल्स और सॉन्ग्स दैट आर सो, मतलब अब लगता है कि एकदम ही डिस्गस्टिंग वाला चीज़ है कि ये चीज़ होती है जो हमें तार देगी। हमारे को गुरुपा ने एक मार्गदर्शन दे दिया कि अब आपका ये एक डेस्टिनेशन है, यू नीड टू गो टू दिस रूट हमें डिफ़ाइन कर दिया, हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो बता दी, अच्छे कर्म कैसे करने हैं, दान कैसे करना है, और कैसे अपने पूर्वजों को खुश रखना है, अपने पेरेंट्स को खुश रखना है, लाइफ में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, लाइफ को जीना सिखा दिया गुरुपा ने। और जो ये बैक टू बैक इतने अटैक्स हो रहे हैं, गुरुपा हमें पल पल बचा रहे हैं, और ढाल बन के खड़े होते हैं गुरुपा। और नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है, और बुरी शक्तियाँ, मतलब इतना सब कुछ पास्ट में हुआ इन लास्ट 2 years, आई वुड से 4 and 5 का भी हाफ हो गया। और इतनी नेगेटिविटी, बुरा साया, काली शक्ति, गुरुपा एक मतलब हमें सुरक्षा चक्र में हमें रखा हुआ है, घेरे में रखा हुआ है, और उससे कोई भी चीज़ हमें अटैक नहीं कर पाती है। और वो हमेशा ही हर एक प्लान में जो है फेल हो जाते हैं। मतलब पहले बैक टू बैक इतनी स्ट्रॉन्ग वाली, आप कहोगे डेली रूटीन में कितनी बार वो लोग अपने ये सब मारण क्रिया कर रहे होते हैं, और बैक टू बैक मतलब आप सुबह दोपहर शाम रात जो भी उनको टाइम मिलता है वो सब, क्योंकि दे आर फ्री, एंड जब भी उनको टाइम मिलता है वो ये सब करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने मेरे ऊपर एंडलेसली मारण क्रिया करी है, पहले खिला खिला करके, जब उनको लगा खिलाना जब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसे पता चल गया है इसने अब खाना, मैंने सीरियसली शंकर जी सब खाना बंद कर दिया वहाँ से। एक कॉमन घर में रहते हुए, एक कॉमन किचन में रहते हुए, आई हैव जस्ट स्टॉप्ड ईटिंग एवरीथिंग, जो कि पहले मैं उनके हाथ से लिया करती थी। गुरुपा ने मेरे को अलर्ट किया, उनका जो है पर्दाफाश हुआ,
और वो हैरान होते हैं कि ऐसी कौन सी पावर है जो कि इसको सारी चीज़ें बता रही थी। मैंने सारी क्लैरिटी अब गुस्से में आकर, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती रही है, मैं एडमिट करती हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से। मैंने सारी चीज़ें उनके आगे एडमिट कर मतलब बोला कि यू हैव प्लान लाइक दिस एंड यू आर डूइंग लाइक दिस एंड दैट। फिर उनको बहुत हैरानी हुई कि ऐसी कौन सी डिवाइन पावर है। फिर उन्होंने उस चीज़ को सबको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस आए हुए, जो गुरुपा मेरे को पल पल हर एक वो चीज़ से, नेगेटिविटी से, इन सब से बचाते आए हैं, मारण क्रियाओं से बचाते आ रहे हैं। पहले खाने के ज़रिए हो रही थी, फिर वैसे होने लग गई। रास्ते में आई रिमेंबर दोज डेज़ की जब एक्सीडेंट्स के इतने ज़्यादा होते थे, और एक आधी बार मेरे को कुछ मतलब कोई एनिमल ही था जो मरा हुआ मिला, और बाद में वो गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे को अगर कोई मरा हुआ मिले तो फिर इसका मतलब ये होता है, मतलब जो कष्ट उनको मिला, मतलब ऐसे वाला। तो और एक्सीडेंट्स के इतने आते थे कि एकदम से गाड़ी क्रैश करती हुई आती है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से गुरुपा हमारे लिए ये सब चीज़ें भी अरेंज करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा ऑन रोड में बहुत डर डर के जाती थी, शक्ल एकदम, कॉन्फिडेंस लूज, पर्सनालिटी एकदम ख़राब। फिर गुरुपा ने मेरे को उसमें फिर हीलिंग देनी शुरू करी। मतलब सत्संग सुन के सब एकदम बेटर होने लग जाता था, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, पॉजिटिव हो गए, आपकी बीमारियाँ दूर होने लग जाती हैं। और द वे आई वॉज शैटर्ड इनिशियल डेज में, जब व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस, तो बहुत वेरी मच शैटर्ड। और देन जब व्हेन आई हैव हर्ड लिसन दो सत्संग्स, उससे मेरे को इतना पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई। और जब मैं अमृत वेला गुरुपा ने मेरे से करवाया, गुरुपा मेरे को खुद साक्षात उठाया करते थे, मतलब महाशिव आपको हाथ पकड़ के वो सब राह पे लेके जा रहे हैं कि आप कैसे इस रास्ते से बाहर निकल सकते हो। इट इज़ टोटली ए मेरेकल। और अपने मतलब लोटस फीट में बिठाकर हमें जो है वो सब ज्ञान देना, वो सब मार्ग दिखाना, और वो राह पे चलाना कि तुम चलो, मैं देख रहा हूँ पुत्र, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स लाइक प्रैक्टिकल गुरु। जब हम क्लास में जाते हैं एंड व्हेन वी आर इन चाइल्डहुड टाइम्स, क्लास में होते हैं, मैं सामने बैठा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे टीचर्स हमें ऐसा बोला करते थे। व्हेन यू यूज्ड टू लर्न साइकिलिंग इनिशियल डेज में, व्हेन वी वर वेरी मच इन फियर कि मैं गिर ना जाऊँ, उसे बैलेंस करना होता है। तो द पेरेंट्स वो हमें क्या कहते थे कि आई एम स्टैंडिंग हियर, और साइकिल का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, नहीं गिरोगे, मैं संभाल लूँगा। In the same way, he is helping us in going through this route, going through this struggle, and he is helping us very much, पल पल हमारे अंग संग रह करके। he is seriously, he is protecting in any way like he can do, and we are so blessed to come under his शेल्टर। और इनकी चतुर छाया में आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और हमारा जो है लाइफ, गुरुपा ने हमारा हाथ थाम करके जो है हमें लाइफ को सक्सेस, हमारी लाइफ सक्सेस हुई है, मैं ये मानती हूँ। और जीवन सफल हो जाना, लोग और परलोक हमारा संवारना, वो सब मैं कंसिडर करती हूँ कि वी आर सो फॉर्चुनेट। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना अपनी मुट्ठी भर संगत में हमें लेने के लिए, और इतना प्यार शॉवर करने के लिए, हमें इतना प्रोटेक्ट करने के लिए पल पल। अदरवाइज़ उनकी इंटेंशंस बहुत ख़राब थी, जो कि उनके फेस से पता चलता था। और वो हमें वॉक करना नहीं देना चाहते थे, बेड से उठना नहीं देना चाहते थे। जस्ट हम एक बेड पर ही दे वांट कि सब कुछ हो और मूवमेंट कुछ भी ना हो, बाहर घूमने ना जाए, कुछ भी ना करे, कोई हर प्रोग्रेस, हर टाइप की प्रोग्रेस को रोक देना। इट्स लाइक ऐसी लाइफ को हेल बना देना चाहते थे। बट गुरुपा की ऐसी कृपा कि मतलब हम शुरू में मैं बेड से नहीं उठ पाती थी, बट आफ्टर दैट गुरुपा ने मेरे को ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि मैं अपना मॉर्निंग में उठना, और मेरा रूटीन ऑल दो अभी भी ख़राब है, बट नॉट लाइक दैट कि जो वो जो उनकी इंटेंशंस थी उसके हिसाब से। एंड बहुत हद तक गुरुपा ने मेरे पे, मतलब बहुत हद तक मैं कहूँगी कि जो कमियां हैं सिर्फ हमारी पाठ पूजा और हमारी चीज़ों में कमी है। अदरवाइज फ्रॉम हिज हैंड
he is protecting me in all the ways, not to me, to my parents, to my family, my husband, my child, and in my maternal family also. एक एक पर्सन को ही इज़ ब्लेसिंग, ही इज़ प्रोटेक्टिंग, एंड मैं गुरुपा का एक एक पर्सन की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि इफ़ यू हैव नॉट होल्डेड माय हैंड, तो रियली मैं बहुत लोगों के इसमें नुकसान होता हुआ देख चुकी हूँ। एक मतलब संगत में ही मैं बहुत लोगों के सुनती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फियर में आ जाती हूँ। बट गुरुपा आपने पल पल एक एक को इतना ब्लेस करा और सबको प्रोटेक्शन दी है, उसका कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करो बहुत कम है। इतने साल, 1.5 साल में इतने अलार्मिंग सिचुएशंस, इतने अलर्ट्स आते रहे। गुरुपा आपने किसी का भी बाल भी बाका नहीं होने दिया, और हेल्थ हीलिंग्स आप हमें दे रहे हैं, प्रोटेक्शंस आप हमें दे रहे हैं। बेहद बेहद शुक्राना इतना संगत परिवार देने के लिए, जिससे हम अपने सुख दुख, अपनी हर सिचुएशन को जो है शेयर कर लेते हैं। उन सबका भी कोटि कोटि शुक्राना। और इतनी हेल्थ हीलिंग्स, आपने कहा कि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आपने मेरे को पल पल हर चीज़ के लिए ब्लेस करा, और उसका भी कोटि कोटि शुक्राना। अभी तक ऐसा है कि मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो मैं कुछ पहले मैं घर पे प्रॉब्लम ये होता था कि मैं घर पे जल भी नहीं रख पाती हूँ, और अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, जस्ट बिकॉज कि एक कॉमन एरिया में वो लोग नहीं करना देना चाहते, और नेगेटिविटी एंड ऑल। वो मैं अपने रूम से निकल के एक दूसरे रूम तक भी नहीं जा पाती हूँ, सेम रूम में भी नहीं कर पाती थी, तो अमृत वेला मेरा हो नहीं पाता था। जल प्रसाद रखना, बड़े मंदिर जाना, सब मेरा ऐसे हो गया था उनकी वजह से। एंड मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था मुझे। एंड देन पानी में मिलावट हो जाना, मेरी बॉडी में इतना जहर पनपना, लीवर किडनीज पे इफ़ेक्ट हो जाना, और इंटेस्टाइन मेरा ख़राब हो जाना, पैरों में इतना दर्द, इन सब के एक एक चीज़ के गुरुपा ने मेरे को सत्संग सुना के हीलिंग्स दी। मेरे जो है घुटनों में जो सर्जरी का एक आया था अलर्ट, और घुटनों में तब से मेरे वाकई में जो है बहुत पेन हो रहा था, अभी भी तक मेरे पेन हो रहा है। और जो गुरुपा के अलर्ट्स आते हैं, टाइमिंग्स एकदम परफेक्ट होते हैं और एकदम रियल होते हैं उसमें। मतलब वो सिचुएशन और जो मेरी सिचुएशन चल रही थी, सेम टू सेम इट इज़ लाइक दैट वे। तो एक एक पेन जो मेरी बॉडी में हो रहा था, जो भी मैं फेस कर रही थी, वो सारा का सारा मेरे उसमें होता था, और कुछ उसमें वो नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा कम ज़्यादा हो। एंड आई नो दैट कि इट इज़ लाइक कॉमन फॉर फ्यू संगत कि कुछ मेरी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स भी उसमें ऐड हो गई, सो दैट वो फ्यूचर में भी कभी वो प्रॉब्लम ना आए। मतलब वट एवर द थिंग इज़ कि कैसे भी उसको आप करें, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन, सो कॉमन कि इतना बिलीव होता था कि जो अभी हम सुन रहे हैं वो मे बी इन फ्यूचर हमें वो चीज़ें ना हो, उसके लिए भी इंक्लूडेड होता है। तो सीरियसली एक एक चीज़ इतनी ब्लेस्ड है, मंत्र जाप इतना ब्लेस्ड, इतना पावरफुल, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होता, आप ढूंढने लगते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मैं बोलती हूँ गुरुपा ये वाला चीज़ नहीं मिल रही है और ये मेरे को मिल जाए, मैं मंत्र जाप करना शुरू करती हूँ, एकदम से चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। गुरुपा का नाम लेके मैं इंटरेक्ट करती हूँ, गुरुपा मेरे को ढूंढ के दे दो, वो सामने मिल जाता है अपने आप चीज़ें। तो इतनी ब्लेसिंग्स हैं सच्ची में। और सत्संग पे जाना एक गुरुपा के हुक्म से कोई नहीं जा सकता, बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर कोई नहीं जा सकता गुरुपा के हुक्म से, हुक्म के बिना। और तो ये सब चीज़ें भी, मतलब अभी तक मैं अगर सत्संग में जा रही हूँ, बड़े मंदिर जा रही हूँ, और लंगर प्रसाद, जल प्रसाद जो मैं ले रही हूँ, वो सब अगर गुरुपा का हुक्म है तभी हो पा रहा है। और उन सब का मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, कि आप मेरे को एक वो दर जो है सिर झुकाने के लिए वहाँ पर आपने मेरे लिए रखा है। मीन्स आई वुड से कि वो दरबार मेरे लिए, मेरी एंट्री उधर हो सकती है, या कहो कि एक दर मेरे लिए खुला है। गुरुपा ने कहा तेरा मायके ससुराल सब वही है, तेरा कोई मायके, तेरा कोई ससुराल नहीं है।
वो ही तेरा मायके ससुराल है। मैं ही हूँ जो देखो हर पल हर क्षण तेरे साथ खड़ा हूँ। वाकई में संगत जी वही मेरे को ढाल बनकर खड़े हैं। आज उन्होंने मेरे को रियलिटी नहीं बताई होती तो सब नॉर्मल एज इट इज़ चल रहा होता। और मतलब और आई डोंट नो मैं कितने दिन उसके बाद सर्वाइव कर पाती, वो सब गुरु पापा छोड़ा हुआ। बट गुरु पापा ने मेरे को इतना हिम्मत बख्शी, इतना पॉजिटिव रखा, इतना प्यार बख्शा अपने मैसेजेस के ज़रिए, और इतना करेज दिया हर वो सिचुएशन को सामना करने का इतने साल में कि हम इतने सब चीज़ों से बाहर आ पाए। और गुरु पाप का जितना शुक्राना करो बहुत कम है। गुरु पाप इतनी भयंकर भयंकर बीमारियों से गुरु पाप ने बाहर निकाला, और अपने इतने संकट कष्ट अपने ऊपर लेना। गुरु पाप ब्लैक मैजिक के जो मारण क्रिया हो रही थी वो अपने ऊपर ले ली, बुद्धि वशीकरण था वो अपने ऊपर लिया गुरु पाप ने। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ गुरु पापा ये सब आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए और हर संकट कष्टों से बाहर निकालने के लिए करते हैं, बट अपना भी ध्यान रखें गुरु पापा, क्योंकि आपके अलावा आपके बिना आप मतलब आपके अलावा हम संगत का कोई भी नहीं होता है जो हमें इतना प्रोटेक्ट कर सके, इतना ब्लेस्ड करे। और आपका एक जो स्माइलिंग फेस होता है जो स्वरूप में, वो हमें इतनी ब्लेसिंग मतलब इससे हमें इतनी पावर करेज मिलती है। आपके साथ रहना, आपको अंग संग महसूस करना, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। जब से हमें जो है ये एक रास्ता दिखा है उसके बाद हमें मन करता है, सभी संगत की यही थॉट है मोस्टली, कि बस आपकी भक्ति करें और वही संगत वही सत्संग करें, और जो आपने हमें रास्ते दिखाए हैं बस अब हम सबका वही एक पर्पस है कि हम वही रास्ते पे चलें। मेरा भी वही है कि हम उसी रास्ते पे चलें, और हमें पता चल गया है कौन अपने हैं हमारे, और हमें किस किस के पीछे इतना मतलब कहते हैं ना कि किसी के पीछे फालतू मत वो करो। आप जो बताया है मेरे को भी कि उनके पीछे पगले मत बनो, और कोई अपना नहीं होता, और कोई नेगेटिव चीज़ें मत देखो, नेगेटिव सॉन्ग्स मत सुनो, और निंदा चुगली से बचे रहो। जो जो मतलब गुरु पापा बताते हैं वो सब चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। एक एक बात पत्थर की लकीर होती है, और इतने जैसे हमारे सब गुरु पापा को हमारी पूरी फाइल हमारे गुरु पापा के पास होती है, और उनको पता होता है हमने क्या बुरे कर्म क्या कर रखे हैं, और फिर भी वो हमारी सब चीज़ों को अनदेखा करके हमें इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेस्ड करते हैं, और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर एक वो सिचुएशन से। तो गुरु पाप का उन सब के लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। हर एक गलती और पाप अपराध को माफ़ करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, और इतना प्यार दुलार देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, इतना मार्गदर्शन करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और मतलब मैं ये कहूँगी आपने मेरे को मना किया था कि निंदा चुगली नहीं करनी, बट फिर भी मैं कभी कभी ऐसे कहीं मैं मतलब बहुत रेयर ही होता है व्हेन आई अवॉइड सिचुएशंस लाइक दैट, बट फिर भी हो जाती हैं। तो उस सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि कई बार बैठे बैठे मल्टीपल चीज़ें जब डिस्कस होती हैं उसमें कुछ ना कुछ और भी ऐड हो जाता है, किसी की बातें ऐड हो जाती हैं विदाउट एनी इंटेंशन। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने बहुत टाइम से जो है अपना चीनी चावल छोड़ा हुआ था, बट अब कई बार हम एक होता है ना पेरेंट्स हाउस में होते हैं या फिर सिस्टर के घर कहीं पर ऐसे होता है कि सब खा रहे होते हैं, मन कर जाता है, तो क्वांटिटी आई यूज़ टू टेक लेस, बट आई टेक वो मेरा हो जाता है। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु पा। और जो भी बुरे कर्म कुछ ऐसा हुआ हो जो कि जीव हत्या इस जन्म में या पिछले जन्म में किसी से भी हुई हो, मेरे पेरेंट्स या फिर मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर्स, मेरा हस्बैंड, मैं, मेरे बच्चे, किसी के भी जो है किसी की पास्ट लाइफ में या फिर इस जन्म में भी किसी से कुछ ऐसा हुआ हो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। इवन मेरे से भी कुछ ऐसा हुआ हो उसके लिए भी मैं हर पल माफ़ी मांगती हूँ गुरु का। उस जो रूह है उसको आप ब्लेस करें और अपने कमल चरणों में, या उसको जो भी उसके लिए बेस्ट हो आप वो करें।
और जो भी पितृ हैं उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, और आप प्लीज़ मेरे को उनसे माफ़ी दिलवाइए, उनसे आशीर्वाद दिलवाए और उनको भी मोक्ष दिलवाएं, जो उनको अपने कमल चरणों में जगह दें, और उनके लिए भी जो बेस्ट हो वो आप करें गुरुपा। और आपने मेरे को जो है सभी ग्रहों से भी माफ़ी दिलवाई, मेरे को आपने सॉल्यूशंस बताए, राह दिखाई कि कैसे आपको अच्छी पूजा करनी है उनकी, ताकि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलें। तो मतलब मेरे को उसकी उधर ब्लेसिंग्स मिले, और वो जो कष्ट है, जो ग्रह दोष है, वो आपने ठीक करवाया, उसके लिए भी आपको कोटि कोटि शुक्राना। मतलब हमें हर एक चीज़ में जो हमारी प्रॉस्पेरिटी को रोकते हैं, आपने मेरे को हर एक वो एंगल से हमारे कर्मास को इम्प्रूव करना सिखाया। हर वो एस्पेक्ट में हमें कैसे अपनी गलती को जो है ना रिपीट करें, या फिर कहो कि उसको कैसे सुधारें, या फिर उसे सुधारना ही हो गया कि हम उसमें अपने कैसे कुछ उपाय करके उसको बेटर कर रहे हैं। यस, तो ये सब चीज़ें हमें जो है गुरुपा हर चीज़ में हमें ग्रूमिंग्स देते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए, आपकी लाइफ में कौन एक प्रायोरिटी पे होना चाहिए, कौन इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और कैसे कर्म करने चाहिए। एंड ही इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल गुरु। और कई होते हैं जो कि हमें बोलते हैं कि आप जो है चुप रहो और आप किसी को पलट के जवाब मत दो, बट ही दे यूज टू टेक, दे डू नॉट फॉलो दोज थिंग्स। वो खुद वो नहीं करते हैं, और वो लोगों को ये समझाया करते हैं, उपदेश दिया करते हैं कि तुम जो है किसी को पलट के जवाब मत दो, बुरे कर्म मत करो, ऐसे करके। एंड दे डू नॉट फॉलो दोज थिंग्स, इवन जो जो वो कहते हैं वो भी। बट हमारे गुरु का हमें सिर्फ उपदेश ही नहीं देते हैं, वो खुद भी वो चीज़ें जो है, वो उपदेश भी क्या देते हैं, सारी संगत ही हमें जो है बताती है वो क्या चीज़ को फॉलो करते हैं। हमें उनसे बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशंस और बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसका भी कोटि कोटि शुक्राना कि हमें पुरानी संगत अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, उनसे हमें जो नॉलेज मिलती है, दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी टॉक अबाउट जनरेशन टू जनरेशन। हमें वो सारे जो हैं बताते हैं और हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, देन हम जो बता रहे हैं वो आगे फॉलो किया जाता है। पहले वाला भी इसमें वो होता है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसे करके फिर और संगत को पता चलता है, दे यूज टू follow those things, so it is like that way। हमें उन संगत से इतना ज़्यादा जो है नॉलेज मिली कि कैसे वो चीज़ों को ट्रीट किया करते हैं, और कैसे मतलब टाइमिंग्स होते थे, मतलब जो भी उनका एक रूटीन होता था, वी यूज टू कम टू नो। तो इन दैट वे ओनली जो हम शेयर करते हैं वो आगे 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 जो है संगत को पता चलता है। ऐसे ही चीज़ें जो हैं मैनिफेस्ट होती हैं, पॉजिटिवनेस मैनिफेस्ट होती है दैट वीज। तो उन सब का कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे को पल पल जो गुरु भाई ने हेल्थ लिंक्स दे रहे हैं उसका भी बेहद शुक्राना। मीन्स मैन आई यूज टू टेक वाटर, तो वाटर इज़ ऑल्सो मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ मिला हुआ होता था, जिससे मैं जितना इंटेक कर रही होती हूँ वो भी मेरे को हार्म कर रहा था। वॉट एवर फ्रूट आई एम टेकिंग वो मेरे को हार्म करने लग गया। ऐसे करके सब्जियां हैव स्टॉप्ड, ऑल दो मेरा रूटीन एकदम वैसा हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरनली वीक होने लग गई। देन आई हैव जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू आई हैव कम टू माई पेरेंट्स होम नाउ। और नाउ आई एम जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम सम हेल्थ थिंग्स, जो वीकनेस वो फील हो रही थी, बट स्टिल आई एम इन कन्फ्यूजन एंड डायलेमा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। कि अब मेरे को जो है लाइक वेदर आई नीड टू बी इन पेरेंट्स होम और आई नीड टू गो बैक टू माई इन लॉज हाउस। तो अगर इफ़ आई विल गो बैक टू दैट हाउस, उधर मैं वापस जाती हूँ, देन वहाँ पर फिर वही सिचुएशन और वही वीकनेस हो जाएगी। एंड आई हैव टू abstain लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक जो मैं पानी पी रही हूँ, जो फ्रूट खा रही हूँ नहीं खा पाऊँगी, तो उससे मेरी हेल्थ इश्यूज़ फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, वो नेगेटिविटी और वो सब चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाएंगी, विच आई डोंट वांट नाउ। तो
यही एक आई नीड टू नो कि मेरे को जो है क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप व्हाट शुड बी। तो एंड देन बस यही एक मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन मोड चल रहा है। और बाकी मेरे को अभी रेगुलरली बैक टू बैक वही मैसेजेस आ रहे हैं, दे आर सेइंग कि दे आर इन देयर पेरेंट्स होम। और मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मेरे को वो रास्ते दिखाने वाले जो होते हैं ना, वो सत्संग आ रहे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट माई सेल्फ कि व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट। एंड आप बोल रहे हैं सत्संग कि आप लाइक वो अपने पेरेंट्स होम में है, उनको अपने हस्बैंड से ऐसा नहीं कुछ कहना चाहिए बिकॉज दे आर लाइक अ विक्टिम नाउ। और वो सब चीज़ें हैं विच आई केम टू नो फ्रॉम गुरुपा ओनली, फ्रॉम मैसेजेस ओनली कि माई हस्बैंड इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दिस थिंग्स। तो ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। एंड फिर मैंने भी इसलिए बहुत टाइम से ये चीज़ें छोड़ दी हैं, ब्लेमिंग माई हस्बैंड इन दैट। तो आई एम वेरी मच क्वाइट। तो बट नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग कि व्हाट माई नेक्स्ट स्टेप शुड बी, कि मेरे को कहाँ पे रहना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेच लिविंग एट माई पेरेंट्स होम। आई डोंट वांट दैट फॉर लॉन्ग टाइम। एंड गर्ल्स के लिए एक अपना हस्बैंड के घर पे रहना ही ज़्यादा वो होता है, विच आई वॉन्ट कि मैं वहीं पे ही रहूँ। बट द सिचुएशन इज़ नॉट इन माई फेवर अबाउट राइट नाउ। तो दैट्स वाई आई एम वेरी मच कन्फ्यूज। बाकी जो ग्रुप हम मार्गदर्शन करेंगे, मेरे को बताएंगे, मैं वहाँ पे रहूँगी। एंड आई विल वेट फॉर दैट इंडिकेशन नाउ। और अभी मैं कृपा का बेअंत शुक्राना करती हूँ एक एक सांस का, और जन्मों से जो मेरा साथ दे रहे हैं, इस जन्म में जो उन्होंने मेरे हर संकट कष्टों से मेरे को बचाए रखा, मेरा इतना कल्याण किया, मेरे पे करुणा करी। एक बार मेरे को ये मैसेज आता है कि अगर वो मेरे को पहले मिल जाते तो फिर जो ये अभी टाइम आ रहा है इसमें वो मेरे को नहीं प्रोटेक्ट कर पाते। तो मैं इस चीज़ में फिर आई अंडरस्टूड ऑल दोज थिंग्स। बट मेरे को ब्लेसिंग्स इतनी मिल रही हैं, आई नो। बट मेरे को उसमें अंदर से ऐसा कुछ फील नहीं होता। बट मेरे को ये फील होता है ज़रूर कि द एक्सपीरियंस जो उन्होंने साथ में रह के अचीव किया है, दैट इज़ वेरी मच फॉर्चुनेट, वेरी मच ब्लेस्ड। कि सामने देखना, दर्शन करना, एक क्यूरियोसिटी से वहाँ आना, अटेंड करना कि गुरुपा होंगे, वो हमसे बात करेंगे। दे आर ऑल सो मच एक्साइटेड कि गुरुपा वहाँ पर हमसे बात करेंगे, कभी हमारा नंबर भी आएगा कि हम शुक्राना करेंगे। तो इट्स द शुक्राना सत्संग जो हम शेयर करते हैं, इट इज़ सो फॉर्चुनेट कि हमारे पे इतनी कृपा हो रही है। एंड वी शुड शेयर आवर सत्संग्स, और हमें बताना चाहिए कि हमारे गुरुपा ने हमारे साथ क्या क्या किया। आई ऑल्सो वॉन्ट द सेम, कि मेरे को कोई ये ना बोले कि आप शुक्राना करो। क्यों? क्योंकि व्हेन वी आर इन चाइल्डहुड, हम शुरू में हमें पेरेंट्स बोलते हैं बेटा ये करो ये करो, फिर हमारी खुद की हैबिट हो जानी चाहिए कि हमें पता है ये काम हमें करना है तो हमें अपने आप करना चाहिए। बट फॉर मी नेगेटिविटी इज़ सो मच कि आई एम जस्ट लुकिंग कि मेरे लिए कौन सी सिचुएशन फेवर होगी। व्हेन आई एम अलोन आई विल स्पीक, आई विल शेयर। एंड इतनी नेगेटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती कि आई एम ट्राइंग टू राइट द थिंग्स। मेरे को एक शुरू में एक इंडिकेशन मिल गया था कि यू शुड मेंटेन योर डायरी एंड यू शुड नॉट डॉट थिंग्स। नाउ माई प्रॉब्लम इज़ वेयर आई शुड कीप माई डायरी, बिकॉज दे आर टेकिंग, मतलब मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है। एंड वट एवर थिंग्स आई एम यूजिंग, आई एम जस्ट वेरी मच ऑन अ वेरी ट्रू साइड कि मैं अपनी डायरी जिस पे वो करती हूँ उधर नेगेटिविटी ड्रॉ हो जाती है, कुछ ना कुछ इंडिकेशन मेरे को मिल जाता है। मतलब उनका एक साइन होता है जो कि मेरे को कॉमन हर चीज़ में दिखता है। एंड माई टॉयलेटरी आइटम्स जो कि जैसे फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, सब पे इतना ज़्यादा कि वो मेरे को नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे रहा होता है। आई एम यूजिंग माई प्रोफेशनल हेयर वॉश, एंड व्हेन आई यूज़, पहले जो इफ़ेक्ट आता था और अब हेयर फॉल होने लग गया, अब बाल पतले हो गए। अपोजिट
सारा रिजल्ट आना, वो सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। माई डायरी जिस पे मैं करती हूँ उस पे हो गया। इफ़ आई एम कीपिंग माई बुक्स ऑल्सो देयर, तो उस पर भी हो जाता है। सब मार्क्स बने होते हैं, जो भी बर्तन होंगे, वट एवर आई एम कीपिंग इन माई रूम, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट। मैं पहले जो डेकोरेट अपना रूम करती थी वो सब मैंने हटा दिया वहाँ से। हल्के हल्के मैंने उसे सबको अलमीरा में ऐसे ही रख दिया। मतलब दे डोंट वांट, एक्चुअली दिस इंडिकेट्स कि वो चाहते नहीं हैं कि आप अपने रूम को डेकोरेट करो। आप अपनी वो मैरिड लाइफ से वो हमारी एकदम डिस्टर्ब कर देना चाहते हैं हर एक एंगल से, कि मैं कुछ भी अपना आगे ग्रोथ ना कर पाऊँ। एंड विच आई केम टू नो ग्रेजुअली। अर्लियर बहुत शौक होता है, बहुत चीज़ें आप अपने रूम में डेकोरेट करते हैं, हल्के हल्के मैं ही होती हूँ जो वो सब चीज़ें फिर अंदर रख देती हूँ। मतलब विदाउट एनी मेंटेनिंग थिंग्स, ऐसे ही आपने अंदर रख दिया कि आपका किसी से मन नहीं है। ऐसी सिनेरियो और ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो वही डायरी शुक्राना सत्संग मैं वहाँ नहीं रख पा रही थी, क्योंकि कुछ भी लॉक नहीं होता। जो लॉक होता है वो अपने आप ही वो लोग मेरी एब्सेंस में उसे ओपन कर लेते हैं। अंदर कुछ क्रिया करते हैं रूम में, जो बताया जाता है कि तेरे सोने के बाद, तेरे जाने के बाद ये सब होता है। कभी मेरे को ऐसा भी फील हुआ कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई इंजेक्शन्स यूज़ करे हैं, जिससे शायद कुछ ऐसी मिस हैपनिंग जो गुरुपा बताते हैं कि कोई मिस कैरेज या फिर कुछ ऐसा, विच आई हैव नॉट डन इंटेंशनली। मतलब मी एंड माई हस्बैंड इज़ नॉट अवेयर अबाउट दैट। जो हुआ, जो स्टार्टिंग हुई, जो एंड हुआ, कुछ नहीं पता मुझे बीच का, सीरियसली। एंड बट आई एम वेरी मच स्ट्रेंज कि वो मेरी मेडिसिन जो मैं यूज़ कर रही थी या टू रिमूव माई सिस्ट, वो मेडिसिन के थ्रू कहते डिज़ोल्व हो जाएगी। एंड व्हेन आई हैव यूज, आई डोंट नो मेडिसिन के साथ भी क्या उन्होंने गेम खेला, क्या हुआ। एंड इंजेक्शन्स का भी मेरे को फील होने लगा बीच में। और बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना किसी ज़रिए से मेरे को नींद दिलवाना और कि फिर मेरे साथ कुछ करना, मतलब ये सब मेरे को ऐसा फील हुआ है कुछ नाइट्स में। एंड आई एम नॉट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर देयर। तो इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें हो जाना, एंड देन बस गुरुपा ने मेरा हाथ थामा हुआ, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सभी डिवाइन पावर्स का भी शुक्राना करती हूँ, गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, गुरुपा के मतलब गुरु माता गुरु पिता का भी शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी। सॉरी संकट जी। एंड देन और नीम करोली बाबा, हनुमान जी, सभी देवी देवताओं का उन्होंने मेरे को भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं, अपना आशीर्वाद दिया। उन सब का भी मैं कोटि कोटि शुक्राना। दुर्गा माता और माँ शक्ति, माँ काली माँ, उन सब ने मेरे को भरपूर ब्लेसिंग्स दी, मेरे को प्रोटेक्शन दिया। उन सब का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और बस यही अरदास करती हूँ कि सभी संगत जो इस ब्लैक मैजिक वाले कीचड़ में फंसे हुए हैं, सभी संगत इस कीचड़ से बाहर आएँ और अपनी लाइफ में प्रॉपर ग्रोथ देखें और खूब ग्रो करें इन स्पिरिचुअल ऑल्सो, इन जो हमारी मटेरियलिस्टिक, मतलब जो भी हमारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसे फुलफ़िल कर पाए। जो भी हमारी नीड्स हैं हम वो हमारी पूरी हो सके, और स्पिरिचुअली भी हमें काफ़ी ग्रोथ मिले, और जो भी हम लोग अभी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो सब हो। और बस यही अरदास है सभी संगत जी के लिए। और गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। हर एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ा जो लग्जरी हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारी सारी विशेष पूरी होती हैं, हमारी सारी नीड्स, हमारा अच्छा खाना पीना, रहन सहन, हमारे सिर पे छत रखी है, उसका कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि उनका एकदम ऐसा प्लान था कि वो कहते हैं कि तुम सड़क पे आ जाओ, उन्होंने ऐसी नौबत ला दी। हर एक बदनामी, हर एक वो ब्लेम से बचाए रखा, हर एक साजिशों से बचाए रखा। ना ही मेरे को, मेरी पूरी फैमिली और मेरे से कनेक्टेड सभी लोगों को बचाया। उन सब के लिए कोटि कोटि शुक्राना। हर एक वो लोग से बचाया गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। दिस इज़ अ मिरेकल एंड दिस इज़ वेरी फॉर्चुनेट एंड नोबडी कैन डू। हमारे गुरुपा महाशिव के अलावा कोई नहीं ये सब कर सकता।
गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना। अगर आप नहीं होते वाकई में हम सब रूल जानते और हम मर जाते। और आपने कितनी संगत के घर को बचाया, कितनी संगत को बचाया, उनके परिवारों को बचाया, उन सब के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना हर एक सांस का कोटि कोटि शुक्राना। आज मेरे को गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया, मैं बड़े मंदिर गई और गुरुपा के हुक्म से दर्शन करवाए गुरुपा ने। कोटि कोटि शुक्राना। और आज 7 जून है एंड गुरुपा ने मेरे को लंगर प्रसाद जल प्रसाद दिया, उसका कोटि कोटि शुक्राना। सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना आपको। और सभी संगत परिवार का जो ये शुक्राना सत्संग सुनते हैं, जो शेयर करते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं और इतना अपने आप को ब्लेस्ड फील होता है व्हेन आई यूज्ड टू हियर ऑल दो सत्संग्स। बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इतने डिवाइन लगते हैं ना, सीरियसली इतना कनेक्टेड फील होता है। बट आई नो कि मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ और ग्रुप ही करवाएंगे। एक टाइम में मैं बता रही थी आपसे कि मेरे को गुरुपा अमृत वेले के टाइम पे उठाया करते थे। फिर मैंने जैसे बोला कि गुरुपा थोड़ी देर, और उन्होंने फिर मेरे को 1 घंटे के बाद अपने आप उठाया। इतना वो एक जर्नी इतनी अच्छी, गुरुपा ने किसी न किसी रूप में मेरे को आके दर्शन देना और अपने एंजल नंबर्स के थ्रू मेरे को ब्लेसिंग्स देना, अपनी प्रेजेंस शो करना और सचखंड से जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो देना, जोत में दर्शन देना और जल पर जो भी मैं भोग लगाती हूँ उसमें मेरे को गुरुपा ने दर्शन दिए, उसका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। सो मच गुरुपा, लव यू सो मच मेरे दात्या। बस इसी तरह जो है हमारा हाथ पकड़े रखना और चाहे हमसे गलतियाँ हों गुरुपा माफ़ कर देना, बट हाथ थामे रखना। आप ही हमें इस सब चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं और हमें स्ट्रेंथ, हमें वो सब राह दिखा सकते हैं। और कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। और जिस भी प्लेटफॉर्म पे लाइक मैं ये शेयर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का है अभी, और उनको भी भरपूर ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, और सभी उनके फैमिली को भी भरपूर ब्लेसिंग्स देना और हेल्थ हीलिंग्स देना। और इसी नोट पे मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग आज के लिए विराम देती हूँ और अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के हुक्म से। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो शुक्राना सत्संग नेक्स्ट बहुत जल्दी हो और बिना किसी रुकावट के अपने मैं प्यारी संगत के साथ ये शेयर करना चाहूँगी गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग्स जो मेरे पे पल पल बरस रही हैं। और सीरियसली मतलब एक सांस लेना वो हमारी ब्लेसिंग है, खाना का एक अंदर मुंह में बाइट जाना वो हमारी ब्लेसिंग्स हैं। इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, इतने सब शुक्राना सत्संग है पल पल के बीच भी कांड से मतलब जो हम नहीं कर पाते हैं। और गुरु बाप का उन सब चीज़ों का भी कोटि कोटि शुक्राना। जो हम खाना खाते हैं कि बाइट, और जो हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, अपनी जगह पर हैं। जो आपका वचन है कि हमारे हाथ मुँह कान अपनी अपनी जगह पर हैं, तो गुरुपा वाकई में मतलब इसका भी शुक्राना है गुरुपा। सब ऑर्गन्स अपने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उसका शुक्राना। और बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि अगर हमारा एक ऑर्गन काम ना कर रहे हैं और आपकी ब्लेसिंग्स हैं इसलिए काम कर रहा है, तो इन सब का भी अनंत अनंत शुक्राना। बस अपने हुक्म नाल जो दिखाए हुए रास्ते पे हमें चलाना, जो आपका हुक्म हो वही हमारा कर्म हो, जो आपके वचन है हम उसे फॉलो कर पाए गुरुपा। हाँ, अभी तक जो भी मेरे से गलतियाँ हो रही हैं उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और जो आपके हुक्म को मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो भी माड़े कर्म है इस जन्म के पिछले जन्मों के उसकी माफ़ी देना। और नानक नाम जड़ती गला, तेरे बाने सरबत दा भला।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अनंतम शुक्राना। आज का दिन 30 जून दिखाने का, सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल के थ्रू आपके चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करवाने का, और सभी संगतों पे, सौम्या आंटी पे, विपिन अंकल पे, हर किसी पे आपकी आशीर्वाद बनी रहे, सदा बनी रहे। हमारी उंगलियां आप पकड़े रहना गुरुपा। हम छोड़ना भी चाहे ना तो खींच के पकड़ के रखना। भले ही उसके लिए जैसे माँ डांटती है ना अपने बच्चों को, कि जब हम चलते हैं बच्चों को लेकर के कहीं, तो अक्सर बच्चे भटकना चाहते हैं इधर उधर इधर उधर, तो माँ ना एक दो बार थप्पड़ भी लगाती है कि सीधी खड़ा रहे, साथ ही चल। तो अगर ये भी करना पड़े ना गुरुपा, तो वो भी अनंतम शुक्राना है आपका। अगर आप वो भी हमें देते हैं तो हमारी किस्मत जागेगी, हम और सुधरेंगे। आपके लक्ष्य कदम पे चलना है, इसी प्रतिज्ञा से अब हम जी रहे हैं। अनंतम शुक्राना प्रभु। पिछला हफ्ता हमने अच्छे से बिताया। आज पूरे 9 दिन हो रखे हैं गुरुपा। आपने शालीग्राम, भगवान शालीग्राम की मूर्ति, उनके जो जो पत्थर होते हैं शालीग्राम, उस रूप में जो आप मेरे घर में विराजे हो, इसका शुक्राना। मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं रोज़ आपकी सेवा शालीग्राम के रूप में पूजा करूं, दिया करूं, बाती करूं, जल चढ़ाऊं, चंदन टीका करूं। ये आशीर्वाद आपने हमारे घर में, हमारे घर को ब्लेस ही कर दिया गुरुपा, हमेशा के लिए ब्लेस कर दिया। और गुरुपा अनंतम शुक्राना इस बात का, अनंतम शुक्राना शायद आप ही विराजे थे, इसलिए मेरे घर के सारी बुरी नज़रें, सारे कष्ट चुटकियों में हट गए। 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, शायद शुक्रवार की बात है, या शायद शनिवार की बात है, हाँ 2 दिन पहले मेरे बच्चे को बचपन सुबह सुबह सपना आया, और उसने सपने में एक खरगोश को मरा हुआ पाया। और वो उठता है और कहता है कि मम्मा मैंने एक सपना देखा, खरगोश मर गया। ये सुनते के साथ तो जैसे गुरुपा मेरे ना मेरे काटो तो खून नहीं, मतलब ऐसा वाला हालत था। मैं समझ नहीं पा रही थी गुरुपा, इस बात पे मैं आपका शुक्राना करूं कि घबराऊं, या इतना दुख, इतना अंदर से ना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस तरफ देखूं। एक तरफ पिता, एक तरफ बेटा। पिता भी उतना ही अजीज है, बेटा भी। किसी को भी कष्ट होगा, बेटे का कष्ट नहीं हुआ तो पिता पर हो गया। तो हम बेटियां कहाँ जाएं, क्या करें गुरु का। सब कुछ आपके हाथों में छोड़ देते हैं, कुछ बचा ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, हम तो लाचार हैं। और गुरुपा तब तो मुझे बस ये अंदाजा लगा कि कुछ तो था बुरा जो कट गया। छोटा सा बच्चा, ऐसे सपने देखा है। और फिर उसके जाने के बाद शायद वही दिन था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद वही दिन होगा। हाँ, मैं सो रही थी गुरुपा, आफ्टरनून नहीं, शायद सुबह के 10-11 बज गए थे, काम वगैरह खत्म करके। कभी कभी मैं सो जाती हूँ, तो मैं सो गई और मैं बहुत गहरी नींद में सो गई। तो मैं सपने में अपने आप को शिवालय में पाती हूँ।
इतना प्यारा मंजर, इतना प्यारी स्थित वातावरण में मैंने अपने आप को देखा है। इतना प्यारा मंजर था वो। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 देवर और देवरानियों को देखा तो नहीं, लेकिन मुझे इतना एहसास था कि हम पूरी फैमिली हैं। मेरे बच्चे सब, हम लोग बहुत खुश हैं। एक दूसरे से बड़े अच्छे से, मतलब जैसे वो खेलने कूदने वाली वो जो जो भाषा होती है ना, जो सिचुएशन बनती है कि अरे हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और वो शिवालय के आंगन जैसा था या क्या था, आसपास तो बहुत पेड़ थे, थोड़ा सा जंगल जैसा माहौल था, लेकिन इतने खुश थे हम लोग। और मैं ये बोल रही थी कि इतनी अच्छी जगह हम लोग आ गए, ऐसा ऐसा मेरे मन में भाव आ रहा था। शुक्राना है गुरुपा, आपने शिवालय का दर्शन कराया, आपने अपने आप को ही मुझे सपने में आपके ही दर्शन कर पाई मैं। और ठीक उसी वक्त वो वो जो सपना था, मैंने उसके तुरंत बाद जस्ट वो बिल्कुल लिंक से अलग लगा। मैंने 2 पैर देखे, उसमें जेंट्स चप्पल थे, और जेंट्स चप्पल पहने, लेकिन वो पैर ऐसे लग रहे थे ना जैसे लेडीज पैर है। पता नहीं, मेरे पैर तो नहीं थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। और मैं वो प्रभु आप ही के पैर समझती हूँ। आपने अपने पैरों का भी, चरणों का भी दर्शन करा दिया। मेरे पास आपका चरण स्वरूप नहीं है, लेकिन आपने साक्षात चरणों का दर्शन करवा दिया। शुक्राना है गुरु का, शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मालिक। मेरे बेटे के कष्ट काटने का शुक्राना है, और इतने प्यारे प्यारे सपने, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने का शुक्राना है। इसी तरीके से प्रभु अपनी कृपा बनाए रखो। और गुरुपा, आपने बहुत सारे मैसेज देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं, मन बड़ा खुश रहता है। आजकल रोज़ मैं शिव महापुराण का पाठ तो करती ही थी, अब मुझे आपने ये भी ब्लेसिंग दी है, इसको तो मैं अपना अहोभाग्य समझू ना, भाग्य हमारे खुलते जा रहे हो, और कुछ भी नहीं है। आपने जो मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया है, रोज़ शाम को 10 बजे हम चैट पे विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे जो हम संगत सब चैटिंग करते हैं, और सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। और ये जो आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी है ना, ये कल हमने दुख भंजनी साहब का पाठ पढ़ा। मैं पहली बार कोई पंजाबी पाठ को पढ़ पाई, और उसके भावार्थ के साथ समझ पाई। मेरा बड़ा मन था कि मैं ना कुछ ऐसे पाठ भी पढूं जो जो सिख कम्युनिटी में आते हैं, और उनका मतलब क्या है, और वो क्या है, वो इतने सारे पाठ हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आता। और मैंने वो कल इतने अच्छे से पढ़ा, और इतना अच्छा, वो 2 टुकड़ा ही मैंने 2 उसमें जो गद्यांश थे वो पढ़ा, और इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो अपने आप को 7वें आसमान में फ़ील कर रही थी। जाने का मन नहीं करता, पर परिवार भी है गुरुपा, तो मुझे थोड़ी देर के बाद चैट से हटना पड़ता है, पर क्या करूं, आपने उतनी ही सेवा दी तो उतनी की मर्जी होगी, और जो आपने दिया वो मेरे हर सवालों का जवाब ही हो जाता है, तो मेरा मन एकदम शांत हो जाता है गुरुपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इसी तरीके से उंगली पकड़े रहना मालिक, है ना, हम सबका पकड़े रहना। मेरे से तो आप कहते हो, मुझसे तो आप कहते हो कि कुछ लोग जो तुझसे दूर हैं उसके बारे में सोचा मत कर, लेकिन मालिक प्रभु, मेरे घर में और भी लोग हैं, वो भी उनसे रिलेटेड हैं। मैं ना सोचूं, वो तो सोच रहे हैं ना गुरुपा। मेरा घर
उनको भी दूर करो प्रभु, उनको भी दूर करो, उनके भी मन से हटाओ। ऐसे लोगों का सोच, ऐसे लोगों का भाव हटाओ। फिर गुरुपा मैं ये भी समझती हूँ, आप कहते हैं किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत चाहो। नहीं चाहती गुरुपा, अब मैं बुरा चाहती थी, आप सही कह रहे थे। मैं एक वक्त था जब मुझे लगता था कि जितना बुरा मेरा हुआ ना तुम्हारा भी हो, लेकिन ना अब मैं नहीं चाहती गुरुपा। अब मुझे कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं ना, अब तो जो करेंगे ठीक ही करेंगे। अगर उनके कर्म का, उनके कर्म के भोग उनको भोगाने, तो आप अपने हिसाब से ही करोगे। मैं अपने क्यों कर्म खराब करूं, है ना। आपने सही कहा है, आपने सही पकड़ा, मुझे बिल्कुल सही समझा। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, बुरा नहीं चाह रही, लेकिन मेरे घर का हर एक मेंबर के दिमाग से, दिलो दिमाग से, वो जो आत्माएं हैं ना, वो जो भी हैं, जो हमारे घर के लिए सही नहीं है, जिनको आपने मुझसे दूर किया है, उनको आप उनसे भी दूर करो। क्योंकि वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो कुछ भी नहीं है, वो बस मतलबी है, पता है। शुक्राना मालिक, शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर समझता हर वेले दा शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज 30 जून का शुक्राना सत्संग रात को 9:35 पर कर रही हूँ। गुरु जी, बस यही होता है कि सारा दिन ठीक से निकल जाए, रात को एक बार गुरु जी का शुक्राना ज़रूर कर दें। गुरु जी, दिन सारा अच्छे से निकालने के लिए, हमारा संग साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्यों आजकल गुरु जी कुछ नेगेटिविटी बहुत हो रही है। सुबह से भी मन पता नहीं क्यों उदास रहता, बिना किसी कारण के ही अंदर से मन बुझा बुझा रहता है। कोई रीज़न समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा परेशानी लग रही है, क्यों उलझन लग रही है। सब कुछ ठीक होते हुए भी एक मन में अंदर डर लगा रहता है, पता नहीं किस चीज़ का डर बैठा हुआ है। गुरु जी, इस डर को आप निकालो, उस नेगेटिविटी से मुझे निकालो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, लेकिन इधर कुछ दिनों से मन ठीक नहीं हो पा रहा है। आज तो मैंने बहुत सत्संग भी सुने, आज मेरे पास टाइम था, मैं अकेली थी इसलिए शांति से सत्संग भी सुनती रही और कोशिश करी कि कुछ नया भजन भी तैयार करूं, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपकी ही कृपा होनी है गुरु जी, जब आप कृपा करोगे तभी होगा। बस हर नेगेटिविटी से, हर बुरे विचार से हमें बचाओ गुरु जी। एक मन में जो डर बैठा हुआ है उस डर को निकालो। बस आप ही हमारा सहारा हो और आप ही हमें तोड़ निकालोगे गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, यही हमारा सहारा है और इसी के सहारे हमने अपनी जीवन की यात्रा पूरी करनी है। इसलिए गुरु जी, बस सुख शांति से ये जीवन कट जाए, आपकी भक्ति करते हुए, आपका सिमरन करते हुए इस नैया से पार हो जाएं। बस गुरु जी, यही आपसे अरदास है। घर से जो नेगेटिविटी का माहौल है, जो टेंशन्स हैं, कलह क्लेश हैं, जो आपस में मन मुटाव हैं, वो सब दूर हो जाएं। सब मिलजुल कर प्यार पूर्वक रहें। जीवन में क्या रखा है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, ये सबको पता है। फिर भी पता नहीं क्यों इंसान मोह माया में फंसा रह जाता है और इन सबको देख के मैं डरती हूँ कि घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। इसलिए बस गुरुजी फिर आपसे अरदास करती हूँ, गुरुजी ये भी दिलवा दो, गुरुजी वो भी दिलवा दो। लेकिन मेरी अंदर से चाह यही है कि बस घर में सुख शांति रहे। हाँ, जो जा चुका है वो जा चुका है, कोई बात नहीं, वो हमारे नसीब का नहीं था। लेकिन बस अब आगे सद्बुद्धि हो, आगे संभल जाए। जो आगे है उसमें कोई नुकसान ना हो, उसके लिए आपसे बस अरदास करती हूँ कि सबको सद्बुद्धि दो, सबको सदमार्ग पे चलाओ
और सबको शांत रखो, सबके दिमाग को शांत रखो, गुस्से को, अहंकार को हटा दो, सबको नीवा होके चलना सिखाओ, सबकी वाणी में मिठास भर दो। हमारे मन में बहुत गलत गलत विचार आ जाते हैं, गुरुजी उन विचारों से भी हमें हटाओ। किसी के लिए कोई गलत विचार हमारे मन में ना आए, बस गुरुजी यही आपसे कृपा चाहती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी अपना साथ बनाए रखो, अपनी छत्र छाया बनाए रखो, गुरुजी अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखो। आपका सहारा चाहिए, आपका आसरा चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है जो आपने हमें ऑडियो सत्संग की दात बख्शी है। उसका इंतज़ार रहता है, बस यही लगता है कि हाँ अच्छे से एक सत्संग होगा, बैठ के रोज़ गुरुजी का सत्संग हो जाता है, इससे भी मन बड़ा खुश रहता है। और जो ये संगत ने पाठ का अभियान चलाया है गुरुजी, उसको भी बिना किसी रुकावट के पूरा करा देना गुरुजी, कोई परेशानी ना आए। आपकी भक्ति के साथ जुड़ के आपका पाठ करते हुए, सिमरन करते हुए हम ये सत्संग अच्छे से पूरा कर पाएँ। जो 41 दिन का हमने चिलिया उठाया है उसे पूरा कराना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। ओम जय नमः गुरुजी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी पलामू झारखंड से मनोरमा बोल रही हूँ, अपने सेकेंड वर्ष से बाहर लोटा से। मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे सत्यम बेटा यानी आपका गुरुपा, सत्यम बेटा की तरफ से शुक्राना गुरुपा, आपकी सुप्रिया बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा, आपकी मनोरमा बेटी की तरफ से हर सांसों के लिए, हर क्षण के लिए, हर पल के लिए, हर जन्म के लिए शुक्राना पिताजी, शुक्राना पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज संडे था गुरुपा, अब आज 23 तारीख भी है गुरुपा, तो आपके दामाद जी चिकन ले आए गुरुपा बिना मुझसे पूछे हुए। गुरुपा एक बार पूछ लेते तो क्या हर्ज था गुरुपा, वो बात करना अच्छा नहीं समझते हैं, तो आप ही जाने गुरुपा कि कौन सी गंदी नेगेटिव है जो उनसे बात नहीं करने दिए, नहीं पूछने दिए। मैं सत्संग सुनते सुनते आपका गुरुपा सो गई थी और वो स्वप्न व ख्वाब में डूब जाती हूँ। गुरुपा वो जानबूझ करके अपने भाई बाबा को सहायता देने के लिए मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं और अपनी माँ को सहायता करने के लिए नेगेटिव फील्ड में मुझसे बात नहीं कर रहे हैं खुलकर। और मुझे पहले जैसा तो बिहेवियर में आपने बहुत चेंज किए हैं गुरुपा। तो आज चिकन बन गया है गुरुपा, तो वो सोचे कि मैं अभी से भिड़ा देता हूँ 5 बजे से इसको बनाने के लिए, तो ये मैंने नहीं अपना दिया बाती कर पाएगी, अपना भगवान मानती है उनको, अपना गुरुजी को। तो गुरुपा मैं तो टच नहीं की चिकन में, उसके बाद मैं झट से चाय प्रसादी सब नहीं लगा पाए गुरुपा, इसके लिए कान पकड़ के मैं सॉरी बोल रही हूँ। और ये मैं दूसरे रूम से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, एक दीवार में फोटो लगा हुआ है पिताजी परमात्मा की, माता लक्ष्मी माँ का, तो उसी के सामने कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ गुरुपा आपके सामने मैं चिकन बनाई हूँ, खाती तो नहीं हूँ लेकिन बनाई हूँ, टच की हूँ, इसीलिए आपके सामने बैठकर मैं सत्संग नहीं शेयर कर रही हूँ गुरुपा, मैं यहाँ दूसरे रूम में कर रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चिकन बन गया गुरुपा, उसके पहले ही मतलब छूने के पहले ही मैं दिया बाती कर ली और इलायची दाना का प्रसाद भोग लगाई, और मैं धूप बत्ती जला के पिताजी परमात्मा जी सभी रूम में दिखा दी, तो मेरे ऊपर बड़का बड़का आँख करके देख रहे हैं कि मतलब पूजा छोड़ती नहीं है। तो मैं अपने गुरुपा की बेटी अपने चरणों में जगह दिए हैं, हमको अपने शरण में रखे, हमें हर तरह से 24 आवर प्रोटेक्शन में रखे हैं, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल को दिमाग को ठिकाने लगा रहे हैं गुरुपा। तो मैं कैसे अपने गुरुपा को भूल जाऊं जो मुझे इतना स्नेह प्यार दे रहे हैं, अपने संसारिक लोगों से हमें हटा करके अपने शरण में रख करके हमें जिंदा रखे हैं। क्योंकि संसारिक लोग जितने मोह माया बंधन हैं और जितने भी मेरे रिश्तेदार रिलेशन हैं जो कि हमको ज़िंदा देखना ही नहीं चाहते थे, तो मैं क्यों उन लोग की बात मानूं, मैं अपने गुरुपा की बात मानूंगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। उनके एक मौसेरा बहन के हस्बैंड भी आए जो कि बहुत सच्चे दिल के हैं और वो बहुत हेल्प मेरा करते थे, लेकिन उनको भी नेगेटिव लगा करके मेरे सास ससुर मेरे से दूर किए, मेरे हस्बैंड से अलग किए। और वो जो रांची वाला ज़मीन है पिताजी परमात्मा जी मेरा नाम से, उस जगह पर उस आदमी में भी नेगेटिव लगा करके रांची उनको भेजा जाता था गुरुपा। जितने भी हैं
गंदे शक्तियाँ उनके घर में भी किया गया। उनके बेटे को एक्सीडेंट से गिराया गया। गुरुपा जब मैं प्रयाग गई थी फरवरी में, पहले गुरुपा हमको वहाँ मैहर माता के पास हमको पैर में पीछे से झटका मारा, दोनों ठेगना के पीछे से। जो ठेगना होता है पैर का ज्वाइंट, उसके पीछे से हमको 12 बजे दिन में मारा। और उसके एक दिन पहले उनका बेटा का एक्सीडेंट हुआ, जहाँ वो पढ़ाई कर रहा था गढ़वा में, पलामू गढ़वा में, शुक्राना ग्रुपा। उसके बाद उनका बेटा आया तो उन्हीं के वाइफ को मैं कहकर प्रयाग गई थी कि मेरे बच्चे के साथ 1 सप्ताह रहिएगा। सो मेरा प्लान बन गया है, मैं जा रही हूँ। ग्रुपा वो चीज़ को सक्सेस ये लोग नहीं होने दिया, और वो चीज़ उनका बेटा भी एक्सीडेंट में पैर टूट गया। शुक्राना ग्रुपा, आनंदम शुक्राना। मैं क्या बोल रही हूँ ग्रुपा, आप जाने क्यों बुलवाया जा रहा है ग्रुपा। उसके बाद ये लोग का भी घर में परेशानी हुआ और मेरे घर में भी परेशानी हुआ। और मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड है, उनका भी पैर में पैरालिसिस हुआ 9 फरवरी के दिन ग्रुपा। और 9 फरवरी के दिन ग्रुपा मैं निकली थी बारलोटा घर से, और वही रात में 12 बजे उनका हुआ ग्रुपा 9 तारीख को, जिस दिन मैं यहाँ से निकली अपना बस सफ़र में उसी दिन। और मेरा 10 तारीख को गुरुपा दिन में 12 बजे पैर में पीछे से मारा झटका। ये घटना से क्या होता है जाहिर गुरुपा, आप जानिए गुरुपा के बाद लोटा घर पर कितना निगेटिव मेरे सास ससुर लगा के रखे थे, और मेरा देवर गोतनी उसी का पालन कर रहे हैं गुरुपा कि और किसी को घाटा डाले और किसी को नुकसान डाले घर में। और वो सीढ़ी पर आज बैठी हुई थी गुरुपा, और 7 सीढ़ी पे बैठती है, 7वां सीढ़ी पे बैठती है गुरुपा, जो नया छत का बना है बाहर जाने के लिए। तो गुरुपा आप ही जानो कि इस देवरानी का क्या मन मकसद है, मेरा देवर का क्या मन मकसद है। आज मेरे चिकन बनाए गुरुपा, हस्बैंड तो बोल रहे हैं कि मैं वो रूम में खाने जाऊंगा। मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है गुरुपा, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, मुझको क्या कर रहा है, मेरे पति के ऊपर कौन सा वशीकरण है। आपने बोले हैं गुरुपा सत्संग के माध्यम से कि मैं उसका वशीकरण को ख़त्म कर रहा हूँ, तेरा नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहा हूँ, तेरे घर से ब्लैक मैजिक को जड़ से भस्म कर रहा हूँ। तो एक कैंसर का भी अभी मैं अपना सुनी पिताजी परमात्मा जी की, तो मेरी बात नहीं मानती हो तो शुक्राना गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा। सुनते सुनते नींद लग जाते हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि गुरुपा का जो अर्जेंट मैसेज है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है, जिसको ना सुनूँ। तो गुरुपा जितना भी टाइम मिलता है गुरुपा, जितने भी फ्लैश होते हैं जिसको मैं ज़्यादा इमरजेंसी समझती हूँ सुन लेती हूँ। आज भी 6-7 सत्संग सुन चुकी हूँ गुरुपा। अभी मैं चिकन वाला सब बर्तन धो के गुरुपा, आगे वाला दूल्हा को सफाई करके गुरुपा, और उसके बाद मैं चिकन को किचन में नहीं बनाई गुरुपा, बाहर बनाई हूँ किचन से हटाकर। शुक्राना गुरुपा, आपसे मेरा यही विनती है गुरुपा कि आप मेरे ऊपर में रूम बनवा दीजिए गुरुपा। और जो हिस्सा उसा में जो त्रुटि लाएंगे मेरे सास ससुर के, तो मेरे घर द्वार नहीं देंगे, तो आप जानिए गुरुपा कैसे आप दिलवाइएगा, ताकि मैं ऊपर में बनाऊँ गुरुपा, और आपका मैं स्थान बनाऊँ एकदम स्वच्छ और साफ से। मैं अपने गुरुपा का सारा चीज़ को पालन करूं। गुरुपा 2 ही रूम है गुरुपा, एक हॉल है, छोटा सा किचन है, लेकिन बाथरूम और बाहर में छोटा सा बरामदा है गुरुपा। बहुत दिक्कत होता है ईश्वर, जितना भी चाहते थे गुरुपा उतना कभी पूरा नहीं होता था, लेकिन अब मेरे गुरुपा सारा चीज़ पूरा कर रहे हैं। और सारे निगेटिविटी की वजह से मेरे सभी काम रुक जाते थे, मेरे पति को वश में करके गंदे लोगों को सारे चीज़ मकसद पूरा होता था, लेकिन मेरा कुछ भी पूरा नहीं होता था गुरुपा। लेकिन अब गुरुपा ने ऐसे दीवार को सारे चूर चूर कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं गंदी शक्तियाँ को, जो मेरे पति को भी नहीं अब बांध सकता कोई, और न मुझे कोई बांध सकता, और न मेरे बेटा बेटी को कोई वशीकरण कर सकता। इसलिए मेरे गुरुपा महानों से महान है, सर्वशक्तिमान है, मेरे परमात्मा से कोई बड़ा नहीं है, मेरे गुरुपा से बड़ा कोई नहीं है। मेरे गुरुपा महानों से महान है। जब मैं गुरुपा का गुणगान करती हूँ, मैं इनका नमन कोटि कोटि करती हूँ, उनके चरणों में चरण वंदन करती हूँ, मेरा हर एक बात बोला हुआ उनके चरणों में समर्पित। अभी आपके दामाद गुरुपा अपनी बहनों को स्टेशन छोड़ने गए हैं, तो मैं सोची कि मैं शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन साफ करूँगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। सॉरी गुरुपा, मैं तो मंत्र जाप की हूँ लेकिन टाइम नहीं बता पाई। आज 30/6/2025 है, आज जून लास्ट हो गया ग्रुपा। और 30 जून के ही ग्रुपा जो आए हैं मेरे ननद के हस्बैंड मौसेरे, उनका मौसेरी ननद का पिताजी को आज ही के दिन डेथ हुआ था ग्रुपा, और उनका भी पहले पैर टूटा था ग्रुपा, उसके बाद उनका डेथ हुआ ग्रुपा। ये सब उलझनों को सुलझाइए ग्रुपा,
मैं आपको सत्संग में क्यों शेयर कर रही हूँ मुझे नहीं मालूम गुरुपा, और इसके पीछे जो भी राज है गुरुपा उस राज को भस्म करिए। और मेरे हस्बैंड स्कूल में थे गुरुपा, मेरे सास ससुर हैं जो फ़ोन करके और मेरे हस्बैंड को बुलाए गुरुपा, और मेरे फोर व्हीलर गाड़ी में बैठ के सास ससुर गुरुपा और वहाँ गए मौसा के यहाँ, जो मौसा डेथ किए। पहले उनका पैर टूटा गुरुपा, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहाँ भी उनको पागल कर दिया गया गुरुपा, किस मैजिक की वजह से हम नहीं जानते हैं। पिताजी परमात्मा जी आप ही जानो गुरुपा, सब आप बोलते हैं गुरुपा कि तुम्हारा कहीं कहीं भी कोई गलती नहीं है, फिर मैसेज फ्लैश होता है कि तुम भी इसमें जिम्मेदार हो। मुझे नहीं मालूम गुरुपा कौन सा देवता लगा करके ये लोग इतना ब्लैक मैजिक को तगड़ा बनाता है, हैवी बनाता है, मुझे नहीं मालूम। जब भी इन लोग का गंदा काम हुआ है पिता परमात्मा जी देवता की वजह से, तो सिर्फ जान लेने का ही काम करते हैं मेरे सास ससुर और देवर गोतनी। उसी में मेरा हस्बैंड को मिला दिया जा रहा है गुरुपा। जिस तरह से जौ के साथ घुन पिसता है गुरुपा, उसी तरह से मेरे पति को पिस दिया गया है। तो आप ही गुरुपा जानिए कि मेरा ज़िंदगी को कैसे आप सफल और शुद्ध स्वच्छ बनाइएगा, और मेरा पति को कैसे स्वच्छ और शुद्ध बनाइएगा। अभी सभी लोग का यही फ़ायदा मिलता था गुरुपा कि मेरे हस्बैंड बुधवार को आते थे स्कूल से, और मैं इनके साथ सोती बैठती थी, और वो कचरा औरत मेरे शरीर में प्रवेश करती थी और ये मंगलपुर पहुंच जाती थी गुरुपा, और सास का काम आसान हो जाता था। लेकिन अभी मैं आपके दामाद के साथ में साथ नहीं रह रही हूँ गुरुपा, क्योंकि मुझे स्वच्छ और साफ रहना है। जितना दिन हमें दूर रहना पड़े गुरुपा, मैं दूर रह के आपके दामाद से मैं अपना कामयाबी को हासिल करना चाहती हूँ। लेकिन इसमें गलत है गुरुपा, मैं इनको जो भी सेवा सत्कार करना है खाना पीना में गुरुपा, मैं आपका जल प्रसाद डाल के देती हूँ गुरुपा। कल मैं चटनी में जल प्रसाद मिलाई थी गुरुपा, और आज मैं नहीं दे पाई हूँ गुरुपा। आज आटा में भी नहीं हम जल प्रसाद मिला के सान पाए, इसके लिए सॉरी गुरुपा, क्योंकि चिकन की वजह से मैं किसी चीज़ को छू नहीं पाई गुरुपा, और मैं पहले ही दिया बाती करके और जाप करके जल्दीबाजी में उठ गई गुरुपा। सॉरी गुरुपा, आज मैं आपका आरती नहीं गा पाई और नहीं कर पाई। हनुमान बाबा का गाई और उनका भी जल्दी जल्दी करके आए गुरुपा। में स्फटिक के माला है कि दीदी से संदेश मिला कि वो सकारात्मक ऊर्जा होते हैं, तो वो स्फटिक के माला ब्लैक रंग के मैं ली हूँ गुरुपा। वो गलत है ये सही है आप जानिए गुरुपा, मुझे नहीं दीजिए। और उसमें एक शंकर भगवान का लॉकेट लगा हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना गुरुपा। तो उसको मैं मंत्र जाप जप करती हूँ और आपका आरती पढ़ती हूँ और शिव चालीसा पढ़ती हूँ, तो उसको मैं गला में पहन लेती हूँ और फिर मैं रख देती हूँ उतार के इसके बाद, ताकि मुझे कोई टोके टाके नहीं। शुक्राना गुरुपा। और एक चित्रकूट से मैं लाई हूँ जिसमें राम लिखा हुआ है तुलसी माला, उसको मैं चित्रकूट से लाने के बाद गुरुपा प्रयाग से आने के बाद मैं कथा सुनी थी, उसी दिन से उसको धारण की हूँ। उसमें से कुछ दाना हट गया है गुरुपा गला के पीछे से, और वो राम लिखा हुआ है उसमें गुरुपा। मैं आपका चंदन टीका करके उस पर उसमें लगा करके मैं सीताराम का भी जाप करती हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। कहाँ पर मुझ में फॉल्ट है गुरुपा मुझे बताइए, रास्ता में किस अंधेरा में भटकी हूँ, मुझे उजाला में रखिए गुरुपा। मेरे बच्ची को शरीर सूखते जा रहा है गुरुपा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले से आपकी सुप्रिया भी बहुत सुधार में है गुरुपा, और आपके दिमाग के दिमाग बुद्धि बहुत शुद्ध हो चुके हैं गुरुपा। आज भोरे भोरे उठ के गुरुपा छत पे टहलने गए थे गुरुपा, उनको कुछ ज़रूर प्रॉब्लम हो रहा है गुरुपा, लेकिन मुझसे बता नहीं रहे हैं गुरुपा। और जितने भी उनके नेगेटिव माँ बाप और भाई बाबा चारों आदमी मिल के और उनकी अपनी सगी बहन और उसका हस्बैंड मिल के इनके साथ जितना खेल खेले हैं ब्लैक मैजिक का, उसका सारा कचरा को साफ कर दीजिए इनके नज़रों में गुरुपा, और इनके सामने सारा सच्चाई को ला दीजिए गुरुपा। मेरी यही अरदास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। मैं सदा अपने जीवन भर सच्चाई का साथ दूँ और मैं कहीं नहीं भटकूँ, सदा मैं झूठ न बोलूँ और किसी को भी मैं झूठ बोलने की सलाह न दूँ। शुक्राना गुरुपा शुक्राना गुरुपा। जिस अध्यात्म से मैं जुड़ी हूँ उस अध्यात्म का मैं साथ देती रहूँ, उस दरबार का सभी बहनों को मैं रास्ता दिखाऊं, सभी अंधेरे में भटके हुए को मैं उजाला में लाऊं और उजाले में लाने का काम करूं। शुक्राना गुरुपा शुक्राना गुरुपा। एक खिड़की से पीछे आंटियां सुन रही है, जो ये घर का खेत दी है, वो औरत मेरे पीछे बहुत ब्लैक मैजिक लगाई थी मुझे तोड़ने के लिए, और वो भी बहुत चाहती थी कि इसका हस्बैंड के साथ गंदा क्रिया करें और इसके साथ करें, लेकिन उस औरत का मुंह तोड़ जवाब मिल गया गुरुपा। अपना ससुर के साथ गंदा देवता लगा करके रास्ता में बैठा देती थी ताकि मेरा पति की हानि हो और मेरा हानि हो। मेरी बच्ची को स्वास्थ्य
स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका सत्यम के स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि आज भोर में गुरुपा मैं सत्यम का शॉप में देखी हूँ, और एक मौसेरा भाई है मेरा मंगलपुर का जो पुश्तैनी घर है, उसका मामा कैंसर से मरा था। और मेरा भाई का बच्चा सोमवार के दिन नाक में कैंसर था उसका, वो भी सोमवार को डेथ हुआ था। और जो मौसेरा मेरा भाई जो है मेरी मौसी का सौतेला बेटा है, उसका मामा कैंसर से मरा था। लेकिन वो लोग मंगलपुर में ही नाना के धन पे विराजमान हैं, और वो लोग हमेशा गलत चीज़ का साथ देते हैं, जबकि परमात्मा में जुड़े हैं और परमात्मा का बेटा बेटी बन करके गंदा काम करते हैं। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा शुक्राना, गुरुपा उस विजय मांझी को सबक सिखाइए गुरुपा। और उसके साथ एक और लेडीज है गुरुपा, जो मेरा बृहस्पतिवार को बहुत ज़्यादा वो टोकती है गुरुपा, और वो है सो राशन के बहाना से हमसे टोकती है, कभी सेंटर में जा कर के बात करती है, उसका कोई भी बहाना मिलना चाहिए, बस मुझसे हमेशा वो लगी रहती है गुरुपा, मुझे नहीं मालूम। और मेरे मायके के रास्ता में औरत खड़ा है, और मेरा मौसेरा भाई जो है मेरी मौसी का सौतेला बेटा, वो भी मेरे मायके के जगह में खड़ा है, और मेरा बेटा उन्हीं के साथ खड़ा है। ये मैजिक सपना का क्या है पिताजी परमात्मा जी, रहस्यमय कहानी को तोड़ो गुरुपा सदा सदा के लिए। कैंसर का जो भी सपना देख रहा है विजय मांझी, मेरा मौसेरा भाई, जो मेरी मौसी का सौतेला बेटा है, वो जो वाइफ हस्बैंड वो लोग भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे पति के पीछे पड़े हुए हैं, और मेरे दोनों बेटा बेटी के पीछे पड़े हुए हैं। कभी वो लोग इन्फेक्शन से उसका बाप मरे हैं, और कैंसर से उसका मामा मरा है, और मेरा मामा का बेटा का बड़ा बेटा मरा है कैंसर से, जिसका नाक में कैंसर था। पिता जी परमात्मा जी, सबका क्या कनेक्शन है कैंसर बीमारी से। तो आज मैं कैंसर का अपना सत्संग सुनी हूँ गुरुपा, और आपने बोले हैं कि अपना बेड बुक करवा लो, मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर भी चुन लिए हैं, मेरा बात नहीं मानती। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बात कभी कैसे नहीं मानेंगे गुरुपा, आप तो मेरे पिता हैं, तो बेटी होकर मैं बात क्यों नहीं मानूंगी, मुझे जिंदा रहना है तो गुरुपा का बात मानना ही होगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं ज़्यादा अब नहीं बोलूँगी गुरुपा। शुक्राना मेरे मम्मी पापा की तरफ से, शुक्राना मेरे तरफ से, अनंतम शुक्राना मेरे बेटा बेटी की तरफ से, शुक्राना मेरे पति की तरफ से, शुक्राना जो जुड़े हैं उनकी तरफ से, शुक्राना जो ना जुड़े हैं उनकी तरफ से, शुक्राना मेरे हर अच्छे चाहने वाले की तरफ से, शुक्राना जो भी गंदा शक्तियाँ लेकर के माथा पे चल रहे थे गुरुपा, वो हम लोग के ऊपर न फेंके, उसी को 100 गुना मल्टीप्लाई करके उसी के कपार पर फेंका जाए गुरुपा, उसी के कपार पर तोड़ा जाए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, तब सबक आएगा गुरुपा। आप अपने ऊपर कष्ट ना ले गुरुपा, आप अपना ख्याल रखें पिताजी परमात्मा जी, शुक्राना। और मेरे शरीर में जो भी गंदी शक्तियाँ लगा कर हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, उस आदमी को ज्ञान बुद्धि दीजिए, सबक दीजिए, उसको अकेल दीजिए, और उसका मुँह तोड़ जवाब दीजिए, उसको सबक सिखाइए गुरुपा, अपने ऊपर कष्ट ना लीजिए गुरुपा। यदि मेरे पति मुझको तोड़ने के लिए गुरुपा ये लोग गंदे आदमी को इरादा में साथ दे रहे हैं गुरुपा, तो इस आदमी को हमेशा के लिए वो जड़ को उखाड़ दीजिए। मेरे पति के ऊपर कौन सा वशीकरण है जो हमेशा उन्हीं लोग के ऊपर ढले हुए रहते हैं गुरुपा, अपने भाई बाबा के पीछे मरते रहते हैं, और अपना माँ बाप के पीछे, जो कि गंदी शक्तियाँ चारों आदमी लगाकर इन्हीं के माध्यम से हमको कमज़ोर बनाया जाता है गुरुपा। तो इन्हीं को जड़ को काटिए गुरुपा, जो मेरे बेटे के लिए भी नुकसान है, बेटी के लिए नुकसान है, और मेरे लिए नुकसान है। हम लोग तीनों परिवार के जो नुकसान करने वाले हैं, मेरे हस्बैंड में ही जड़ है, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, उस जगह से भी निगेटिव भेजा जाता है गुरुपा। और यहाँ बारनोटा घर से भी निगेटिव, ये आदमी को हर तरह से बांधा जाता है गुरुपा, इसलिए इस आदमी को ही आप आज़ाद करिए गुरुपा, इनको वशीकरण से भस्म करिए गुरुपा, इनको वशीकरण से तोड़ के बचाइए गुरुपा, ताकि हम बचे, मेरा बेटा बचे, बेटी बचे। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना गुरुपा। शिव मेरी पूजा, शिव मेरी पूजा, शिव मेरी पूजा, शिव मेरी दूजा, अपने सहारे बनाए रखना, शिव बाबा अपने दिल में बसाए रखना, तेरे ही सहारे थे, तेरे ही सहारे हैं, तेरे ही सहारे हम रहेंगे, तेरे ही सहारे हम रहेंगे।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। मुझे 3 बजे उठा दीजिएगा गुरुपा। शुक्राना 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 सब आपके हाथों में है गुरुपा। जो मुझे नीचे जमीन पर पटक के गिराना चाहता है गुरुपा, वो सदा सदा के लिए अपना देखे कि वो क्या कर रहा है मेरे लिए। मुझे तो गुरुपा संभाल लेंगे, लेकिन वो अपना देखे कि अपना कर्म कैसे खराब जय कर रहा गुरुजी, है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करने जा रही हूँ। मैं गोरखपुर से निशा। आज दिन सोमवार है, गुरुजी का दिन है मेरे, और टाइमिंग रात के 11:13 हो रहा है। और आज का तारीख 30 जून 2025, लास्ट महीना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करने जा रही हूँ। मैं अपना साय शाम के समय अपना सत्संग शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि शोर होता है। इस वजह से मैं अपना सत्संग रात में शेयर करती हूँ। तो मैं मंत्र जाप के साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग मेरे मुझे डॉक्टर ने आई ऑपरेशन करने के लिए आज 3 महीना पहले ही बोला था, और मैं पैसे की दिक्कत की वजह से भी मैं आई ऑपरेशन नहीं करा पाई हूँ अपने। और मैं गुरुजी के जल प्रसाद ही अभी अपने आप में डाल रही हूँ, और गुरुजी मेरे वही आँख की रोशनी सही सलामत रखेंगे। मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है। तो हर पल गुरुजी का शुक्राना है, जो हर समय गुरुपा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। और गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे आँख की रोशनी सही हो जाएगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल हर पल हर पल पल का शुक्राना है, हर एक एक सांस का शुक्राना है मेरे गुरुजी का। गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे आँखों को ब्लेस कर दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और तू टेंशन क्यों लेती है? तेरा पिता तेरे साथ है, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुजी। हर एक एक अंग को सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल हर क्षण हर अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को ये विराम देती हूँ। शुक्राना सत्संग फिर से मैं करूँगी। अब मैं मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत परिवार को भी गुरुपा इसी तरह ब्लेस करना। मेरे विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी, उनकी पूरे फैमिली को ब्लेस करना, जो सत्संग सही समय से शेयर कर देते हैं, सब सारे संगत का ख्याल रखते हैं। उनको गुरुजी का बहुत अच्छा सेवा मिला है, और हमेशा वो इस काम को अच्छे ढंग से करते रहें। गुरुपा का आशीर्वाद बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई गलती हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ सारे संगत जी से और अपने गुरुजी से। और सारे संगत परिवार को भी गुरुपा ब्लेस करना, मेरे सारे फैमिली को ब्लेस करना। और जो मेरे सत्संगत नहीं है उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना ख्याल रखना गुरुपा। सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना गुरुपा। सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना।
जो हॉस्पिटल में हैं उन्हें उनके परिवार में वापस ले आना गुरुपा, और मेरे मम्मी पापा को शांति और मोक्ष प्रदान करना, मेरे सारे पूर्वजों को भी शांति और मोक्ष प्रदान करना, सदैव उनको अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सबकी भला करना गुरुपा सबका। जय गुरु जी, जय शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वांग शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज शेयर करूँगे आप सब भी संगत परिवार से। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। कल की मैसेज है गुरपा का। संगत जी, कल की फिक्र मत करो, जिसने आज तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। शुक्राना गुरु जी महाराज। आई लव यू गुरु जी, संभालने के लिए। अगला मैसेज है संगत जी, चिंता ना करो, तुम्हारी किस्मत का तुम्हें मिल जाएगा ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। क्यों फिक्र कर दे हो पुत्र, कोई कितना भी छीन कर ले जाए, जब ईश्वर देने पे आते हैं तो उसकी सीमा नहीं होती। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला मैसेज है संगत जी, मम्मी ਨੂੰ बता दे जो ओने मंगया था वो पूरा हो जाएगा, सारे काम बन जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बच्ची ਦੇ परिवार ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ परिवार ते मेल कर ली शुक्राना गुरु जी महाराज। सबके घर बरकत डालो उनके गुरु जी महाराज। अगला मैसेज है गुरु जी का, अच्छी संगत में रहना जरूरी है तो ही जिंदगी में आगे बढ़ोगे। अच्छा करो, सबके बारे में अच्छा सोचो, निंदा चुगली से दूर रहो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए। अगला मैसेज है संगत जी, ये मेरा सत्संग है संगत जी। मेरी नाम दो जेठानियाँ हैं जो शुरू से मुझसे शुरू से मुझे नीचे गिराने की बहुत कोशिश कर चुकी हैं, पर मेरे गुरुपा ने हमेशा मुझे उठाया है, हमेशा उनसे मुझे बचाया है। मेरे गुरुपा उनको उनके कर्मों की सजा दे रहे हैं। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था, अगर गिराने वाले लाख हैं तो याद रखना संवारने वाले स्वयं भोलेनाथ हैं। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना भोलेनाथ, शिव शंभुनाथ। आई लव यू गुरुपा। अपनी बच्ची पे मेल करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगला मैसेज नीम करोली बाबा का, आज 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 से तेरे परिवार की जिम्मेदारी हम दोनों की इसे तेरे परिवार वालों को भेज दे। राम राम सीता राम, जय बजरंग बली जी। शुक्राना मेरे बजरंग बली जी, सीता राम जी। मेरे सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग
यही समाप्त करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत परिवार को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल को भी जय गुरुजी, जय गुरुजी।